Welcome everyone to Not So Scary Maths. Let us try to make it as simple as we can. Last class we have discussed what are rational numbers. Now we will discuss what are irrational numbers. Irrational numbers are denoted as s, which cannot be written in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Whereas rational numbers denoted by q, which are expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q cannot be equal to 0. Okay. Now let us start exercise 1.2. Okay. So the first question is true and false. First question is, every rational number is a real number. Yes, every rational number is a real number because real number comprises of both rational number plus irrational number. So one is correct. Second, every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number. No negative, it is false because no negative number can be the square root of any natural number. Okay. Third, come to the third question. Every real number is an irrational number. Every real number is an irrational, not necessary. It can be rational also. Okay. Because if we take example, for example, 2 is a real number, but it is not a irrational number. Okay. Now come to the question number 2. Are the square root of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. So it is no, because they are telling, are the square root of all positive integers irrational? No. Suppose for example, if we take, see, this is a positive. Suppose I take root 16, which is what? 4 into 4, which is 4. Okay, so it is not necessary that all the square root of positive integers are irrational, because here 4 is a rational number. Now we will start with the third question. Okay. We have to see, with this I will tell all. Question is, you have to locate root 5 on number line. I will tell you all starts from root 2, root 3, root 4, root 5, because it goes in a spiral way. Okay. So we will start. First what we will do, we will make a triangle. We will make a triangle, right angle triangle. Suppose this is a, sorry, I will make it here. Suppose this is a right angle triangle. Okay. Okay. O, A and B. Suppose we have to take 1 centimeter. 1 centimeter you measure with the scale and take. Okay. Because this is a right angle triangle, this is hypotenuse, this is base, and this is perpendicular. As you know Pythagoras theorem, how it is. So Pythagoras theorem is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Okay. So here h square, your base square is 1, perpendicular is 1 centimeter, which comes as 1 square is 1 plus 1, h square is equal to 2, h, if I transfer square here, it will become root 2. This is how here it comes. So now h is your root 2. But in the question it is, we have to locate all these square root on the number line. Okay, the question is that. Okay, before that I would like to tell you one thing. Suppose we take a circle. Okay, this is center point. From center point to any point on the circle is radius, and which is all are equal, isn't it? All these points are equal. Similarly, what we will do, now we will extend this line. Okay, we will extend it. Okay, let us keep it as P for example. Now you will take one compass, because this is your root 2, so you will take the radius as OB. Okay, you will measure, you will take as OB, and you will keep your compass here on this vertex, so, and you will try to make a cut
on this number line, see this cut is here. It makes a cut here. So basically on the number line, root 2 is from O to this point. Let me name is at C. So O to C is your root 2 on the number line. Okay. Now we will continue with root 3. It is in a spiral shape. What you will do from B, because I have kept this point as C, I will take BD. You will again draw perpendicular line of 1 centimeter. Okay. Let us keep it as BD. Join this D and D. Now again this is 90 degree. So this becomes, so this is base, this is perpendicular, this becomes OD becomes H. Same again we will calculate H square is equal to base square plus perpendicular. Here if you see, the base is root 2 whole square. Your perpendicular is 1 centimeter. You know root 2. I think so you know how to calculate root and all. So now see, root 2 square means root 2 into root 2. Plus 1 square is 1. Root 2 into root 2 is what? Root 4. Root 4 is nothing but 2. Okay, directly I will take here 2. So here H square is equal to 2 plus 1, 3, which H is equal to root 3. Okay, now here your H hypotenuse becomes root 3. Okay, again similarly what you will do, you will take radius O to D and make a cut O to D. You will take a radius. Okay, and on the number line, see it is coming little. On the number line O to D I have taken radius, and on the number line I will make a cut here. See somewhere here it cut is coming from O. You will take radius OD, make a cut on OP somewhere here. This is coming. Let me keep it as, I can keep it as Q. So OQ, so from O to Q is your root 3 on the number line. Similarly, again what we will do, now from D to E, again 1 centimeter, 90 degree, you draw 1 centimeter, join this. Again if you calculate root 3 square plus 1 square, it will come your root 4. Again you will take 1 centimeter perpendicular, join this. If this point is E, keep this as F, and this will come as root 5. So it is in the shape of a spiral. It goes on like this. With this we have completed our third question, exercise 1.2, and with this we complete our exercise 1.2. Hope it is clear. वेलकम ऑल टू नॉट सो स्केरी मैथ्स. ठीक है, शुरू करते हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3. आई होप एक्सरसाइज 1.2 तक सबको क्लियर होगा. हम हर एक एक्सरसाइज का 1 by 1 ईच एंड एवरी क्वेश्चंस ले रहे हैं. ओके, सो हियर मैं रैशनल नंबर्स को मैं सब्स्टिट्यूट करी हूँ, डिनोट करी हूँ क्यू से. आई एम नॉट राइटिंग इट एज रैशनल नंबर, क्यू से डिनोट करी हूँ. सो रैशनल नंबर कैन बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग. मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगी विद एग्जाम्पल्स. वेयर एज इरैशनल नंबर्स will not be terminating, neither non-terminating, repeating. Okay, terminating का मतलब होता है मीन्स जहां पे कि आपका रिमाइंडर 0. टर्मिनेट मीन्स फिनिश हो जाता है. ओके, 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिए. इफ यू सी दिस इज टर्मिनेटिंग. ओके, सो द क्वेश्चन हियर इज इफ यू सी 7 डिवाइडेड बाई 8. यहाँ पे क्वेश्चन है 7 डिवाइडेड बाई 8, जहां 8 आपका डिवाइजर है, 7 आपका डिविडेंड है. नॉर्मल डिवीजन वी हैव डन, सिंस 7 को 8 से नहीं डिवाइड कर सकते, पॉइंट लिया हमने, ऐसे डिवाइड करके देखा. लास्ट में यहाँ आफ्टर द क्वोशंट 0.875 द रिमाइंडर बिकम्स 0. सो ये फुली टर्मिनेट हो गया, मतलब जहां पर कि आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है. एक एग्जाम्पल हम देखते हैं वेयर इट इज, जो मैंने लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. मीन्स सपोज ये आपका क्वेश्चन था 1 डिवाइडेड बाई 3, वेयर 3 डिवाइजर है, 1 आपका डिविडेंट है. 1 को नहीं डिवाइड, 10 डिवाइडेड बाई 3 इज द क्वेश्चन. सो हमने 3 3 9 किया.
1 रिमाइंडर आया, नहीं डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट लगाए, 0 लगाए, फिर से 3 3 ज़ा 9, फिर 1 रिमाइंडर। सो आप देख रहे होगे कि कुछ स्टेप के बाद 1 रिमाइंडर, फर्स्ट स्टेप पे ही आप देखो 3 3 ज़ा 9 जब हमने किया तो यहाँ एक्चुअली रिमाइंडर 1 आ रहा था, फिर हमने 0 पॉइंट लगा के 0 लगाया। सो एवरी स्टेप के बाद आप देख रहे हो 1 कंटिन्यूस द सेम रिमाइंडर 1 आ रहा है। और ऊपर अगर आप देखोगे क्वोशंट में तो 3 3 जो ये रिपीटिंग ब्लॉक है, मतलब अब ये हर बार 3 3 3 3। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब 0 रिमाइंडर नहीं आ रहा है बट रिपीटिंग। सो क्वोशंट जो है वो रिपीटिंग ब्लॉक्स हो रहा है। सो इसमें अगर हम स्ट्रिंग बोलेंगे रिपीटिंग स्ट्रिंग तो दैट इज 1, मतलब अब बार बार 3.3333 आएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए। ओके, सो दिस ये हमारा क्वेश्चन था 1/7 जहाँ पे 7 हमने नॉर्मल डिवाइड किया, सब 7 1 ज़ा 7, पहले पॉइंट लगाया, 0 लगाया, डिवाइड करने के बाद आप देखोगे बेसिकली कितने स्टेप के बाद 1 2 3 4 5 6 के बाद क्वेश्चन क्या था 1 डिवाइडेड अगेन, फिर यहाँ तक आते आते अगर आप देखो तो फिर से यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब अब हमारा क्वेश्चन फिर से सेम वैसे ही रिपीट होगा, मतलब वापस से फिर आप 0 लगाओगे, यहाँ पे फिर 1 4 2 8 5 7 ऐसे ही कंटिन्यूअस चलता जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें कितने रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4 5 6, हर 6 डिजिट के बाद फिर से वही नंबर रिपीट होगा। सो रैशनल नंबर्स बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, या तो टर्मिनेट हो सकते हैं फुल्ली या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। वेयर एज इरैशनल नंबर्स जो होते हैं दे आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर दे आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। होप दिस इज क्लियर। अब हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन 1 by 1 लेंगे। एक्सरसाइज 1.3। ओके, नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ओके, सो डेसिमल एक्सपेंशन भी मैं आपको सिखाऊंगी, विद दिस एक्सरसाइज ही हम कर लेते हैं। ओके, सो आपको डिवाइड करके, सो एक्सरसाइज 1.3 का आपका फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आपको देखना है, पहले स्टार्ट ही हमने किया था 1 से, फिर 1 रिमाइंडर आ गया, फिर से वही सेम 09.09.09 ऐसे करके वो रिपीट होता जाएगा। नेक्स्ट आपका थर्ड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो मिक्स्ड फॉर्म में है 4 1/8। ओके, आपका मिक्स्ड फॉर्म में 4 1/8। होप इसको आपको कन्वर्ट करना आता होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन को। सो कैसे कन्वर्ट करते मैं फिर भी बता देती हूँ। 8 × 4 32, 32 + 1 33/8। अब इसको आप डिवाइड करो, 8 4 32, आपका आया 1। ठीक है, नहीं हो पाएगा, पॉइंट लगाए, 0 8 1 8, फिर 2, फिर आपने 0 लगाया, फिर आपका 8 2 16, फिर आपका 4 आया, 0 8 5 40। यहाँ तक जाने के बाद अगर आप ध्यान दो तो ये दिस इज फुल्ली टर्मिनेटिंग। सो आपको हर क्वेश्चन को ऐसे डिवाइड करके देखना है कि वेदर that rational number is terminating or non-terminating repeating. Hope first question आप लोग सॉल्व कर लोगे। सिमिलर पैटर्न पे सॉल्व करना है। अब हम आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। ओके, सो एक्सरसाइज 1.3 का, एक्सरसाइज 1.1 का 3 क्वेश्चंस मैंने बता दिया है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज सुपर इजी। कैसे करेंगे? सो यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू, आपको क्वेश्चन में दे दिया है 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। इस बार का मतलब दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब इतने डिजिट के बाद अगेन ये रिपीट होगा। जब डिवाइड करेंगे तो सेम ये फिर से आएगा 142857 और वो कंटिन्यू होता जाएगा 142857। ओके, इसमें आपको निकालना क्या है? आपको डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 निकालना है, 3/7, 4/7, 5, 6/7। ओके, टिल हियर निकालना। सो ये इसको बहुत सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। 1/7 आपको पता है, 2/7 का मतलब क्या होता है? अगर हम 1/7 × 2 कर दिए तो वो क्या हो जाएगा? 2/7।
1/7 का वैल्यू आपको पता ही है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो बेसिकली ये हो जाएगा 0.14285 इंटू 2। ये हम इस तरीके से करेंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। कर लेते हैं 2 से, देखिए मैं आपके साथ ही कर लेती हूँ। 2 7 ज़ा 14, 4 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 कैरी 1 मतलब 11, 2 8 ज़ा 16, फिर एक कैरी 17, 7 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, एक 5, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। सो ये आपका आ गया 0.285714। ठीक है, तो ये इस इतने पे ये रिपीट होता जाएगा। अगर आप डिवाइड करोगे 2/7 तो आपका ये आएगा, और फिर ये फिर से 285714 ये जो है वो, अगर आप देखो तो इस तरीके से ये आपका रिपीट होता जाएगा। सेम अगेन आप 3/7 को भी कर लोगे। 3/7 कुछ नहीं है बल्कि 3 इंटू 1/7। 1/7 का वैल्यू आपको दिया गया है, 3 इंटू 1/7 का वैल्यू है 0.142857। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ आ जाएगा 0.428571, और ये इसके बाद रिपीट होता जाएगा। सो मेरे ख्याल से आप सेकंड क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हो। ओके, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.3 के थर्ड क्वेश्चन पे। सो थर्ड क्वेश्चन बेसिकली, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था रैशनल नंबर चैप्टर। सो रैशनल नंबर इस कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम, p/q के फॉर्म में, जहां p एंड q आर इंटीजर्स एंड q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होता है रैशनल नंबर। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया है 0.6 दिस बार। बार मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, मतलब ये एक एक डिजिट के बाद एवरी 0.66 ऐसे ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, बट आपको इसको एक्सप्रेस करना है p/q फॉर्म में। आपको इसको एक्सप्रेस करना है p/q फॉर्म में। ओके, सो हम स्टेप बाय स्टेप अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.6 कंसिडर कर लेते हैं, x है 0.6। ठीक है, अब आपको देखना है बार कितने डिजिट पे, 1 डिजिट। 1 डिजिट मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये 66 2 डिजिट होता, हम 100 से मल्टीप्लाई करते। ये कुछ 6 6 7 3 डिजिट होता तो हम 1 2 3 1000 से मल्टीप्लाई करते। बट इस क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन है x इज 0.6, एक ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू एक्स, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि 0.10 इंटू 0.6, एक तरीके से 6 कर लीजिए, क्योंकि ये मैं बोल रही हूँ ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अब हर डिजिट के बाद ये 6 ही होगा रिपीट। सो ये कितना हो जाएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10x इज इक्वल टू, आप देख लो 660 6.6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10x इसको इससे माइनस कर लेंगे और इसको इससे माइनस कर लेंगे। 10x माइनस x होता है 9x। यहाँ पे आप कर लो, मैं यहाँ साइड में माइनस कर देती हूँ। 6.6 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा आपका, ये 0, 6 बचा सिर्फ 6। x क्या हो जाएगा, 6/9। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, दोनों 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा 2/3। सो दिस इज हाउ वी डू। ओके, इस रिपीटिंग को आप कितनी बार भी रिपीट करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिकॉज ये जितने डिजिट्स के बाद, जितने स्ट्रिंग्स के बाद ये रिपीट होता है। ओके, एक दो क्वेश्चन हम और कर लेते हैं इसके, मे बी उसके बाद आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे ऊपर है, सो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको अगर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ रब करके। तो x इज इक्वल टू हमारा दिया है 0.47, 7 के ऊपर बार है, 10 से मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई किया 0.47। आप रिपीटिंग को रिपीट कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज ये एंड नहीं होगा, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, सो आप इस तरीके से कर लो, 7 7 ओके इंटू 10। ओके, अभी आपका हो जाएगा, आप यहाँ पे 10x लिख दो, यहाँ पे आप लिख दोगे 477। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। सी, ये 0 एंड नहीं होगा, बिकॉज ये तो इट कीप्स ऑन 7 7 7 7 आता रहेगा।
सो बेसिकली आपका ये हो जाएगा, ठीक है, आपका पॉइंट 4.77 हो गया। ओके, नाउ सेम स्टेप, ये माइनस, अगर आपको समझने के लिए लिखना है तो आप लिख लो 0, फिर कितने 1 2 3 1 2 3, बट बेसिकली 0 होगा नहीं बिकॉज इट कीप्स ऑन रिपीटिंग। ओके 4.77 हो गया। सो बेसिकली आपको ये समझना है 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक डिजिट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट आपका एक यहाँ पे आ जाएगा, दैट्स इट, 100 होगा तो 2 के बाद आ जाएगा। अब सेम 10x माइनस एक्स इज 9x, और यहाँ पे आप करके देख ले साइड में 4.77 है माइनस सेम 0.47 से हम माइनस कर लेते, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 4 3, ये 4.3, ठीक है 4.3 है। अब हमको x का निकालना है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 9 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ शिफ्ट होकर 9 हो जाएगा। अगर आपको डेसिमल रिमूव करना है आपको पता ही होगा, इंटू 10, क्योंकि डेसिमल रिमूव कर रहे हैं, सो ये बेसिकली हो जाएगा 43/90 इज द आंसर। होप ये क्लियर हो गया। ओके, अब सेम आप वैसे ही फोर्थ वाला भी कर लोगे। अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन इफ यू सी, अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन सेज एक्सप्रेस 0.99999, 5 टाइम्स 9 है, so basically it is 1 2 3 4 5. Okay, in the form P by Q, are you surprised by your answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. Okay, आपको हमेशा देखना है। सो बेसिकली ये क्या है, ये 9 पे एक तरीके से ये रिपीट हो रहा है आपका 0.9, ठीक है, सेम वही चीज हुआ। आप x ये है, x ये दिया है, एक डिजिट के भाई कीप्स ऑन रिपीटिंग, तो आपको देखना है कितने डिजिट की बाद सेम डिजिट रिपीट हो रहा, सो 1 टाइम। सो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैंने आपको बोला कि ये एंड तो होगा नहीं, सो पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा आपका 9 पॉइंट, और ये रिपीट होता जाएगा, ये 999 रिपीट ही होता जाएगा। आप जो भी करो फिर आप सब्ट्रैक्ट कर दो इसको इससे, इसको इससे, 10x माइनस एक्स इज 9x, 9.9 माइनस 0.9 अगर आप करोगे तो आपका सिर्फ आ जाएगा 9, x हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 9 विच इज 1। ओके, सो बेसिकली अगर आप देखोगे कि अगर 0.9 है सो इट विल कम एज 1। नाउ कम टू द सिक्स्थ question. Okay, I will read. Look at several examples of rational numbers in the form P by Q where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal replace. इसका मतलब क्या होता है, एक रूल है, प्रॉपर्टी में बता रही हूँ आप लोगों को। सो बेसिकली हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, और उसके साथ में मैं आपको एक प्रॉपर्टी भी बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। सो मैंने बताया है जो भी रैशनल नंबर है मैं इसको डिनोट कर रही हूँ क्यू से, बार बार मैं रैशनल नंबर नहीं लिखूंगी, क्यू से मैं डिनोट कर रही हूँ। सो एक रैशनल नंबर p बाई क्यू को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी बोलेंगे व्हेन, टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी बोलेंगे जब ये q के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ओनली, q के प्राइम फैक्टर्स आर ओनली 2 and 5 और बोथ। इसके अलावा अगर सपोज आपको किसी क्वेश्चन में दिया गया बिना डिवीजन किए, आप देख के बताओ कोई एग्जांपल की वेदर ये आपका टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, डिवाइड करके तो आपको पता चल जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने एक ले लिया 5/32। सो आपको देखना है क्यू के प्राइम फैक्टर्स सिर्फ 2 5 या दोनों हो सकते हैं। सी कॉम्पोजिट फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, और हमें पी को नहीं कंसिडर करना है, क्यू को मैं आपको एक करके भी दिखा देती हूँ। कहने का मतलब क्या है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब हमको ऐसे 32/5 नहीं डिवाइड करके चेक करना है, हमको सिर्फ इसके प्राइम फैक्टर्स देखने हैं। 32 के देख लेते हैं, 32 2 से डिवाइड करेंगे 16 आता है, फिर से 16 डिवाइडेड बाई 2 8, अगेन 2। सो अगर आप देख रहे हो, सो 2 8 16, ओके 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 4, 2 1 2। अगर आप बेसिकली देखो तो आपके सारे फैक्टर्स इसमें प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 हैं, तो यस ये कंप्लीटली टर्मिनेटिंग होगा। मैं आपको डिवाइड करके भी 10।
सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. सो विदाउट एक्चुअल डिविजन अगर हमें बताना है कि वेदर अ रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है तो नहीं, उसका कंडीशन है कि Q कैन ओनली हैव प्राइम फैक्टर्स एज 2 and 5 और बोथ. सो देखिए इसमें Q के प्राइम फैक्टर्स 2 है, सो यस इट इज. ओके, नाउ वी विल कम टू आवर seventh question. I hope sixth question, yes, we have done our sixth question. Now we will come to our seventh question. I will rub. Okay. So our question says, write three numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring. Hope या आप खुद से ही ये वाला कर सकते हो. कोई 3 एग्जाम्पल्स देख लो जिसमें से कि आपको दिखाना है कि whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. सो सेवेंथ क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो तो बेसिकली बोला है आपको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग. सो डेफिनेटली दिस विल बी अ इरेशनल बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग. क्योंकि रैशनल तो आइदर टर्मिनेटिंग हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. सो आप एक एग्जाम्पल जैसे अगर आपको मैं देना हो तो कोई एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं इसमें, जैसे 0.0123 132. सी किसी पैटर्न पे रिपीट नहीं हो रहा है. ऐसे कोई भी 2-3 एग्जाम 0.0110 आप दे सकते हो बिकॉज ये किसी भी पैटर्न पे, सिमिलर पैटर्न पे रिपीट नहीं हो रहा है. होप सेवेंथ इज clear. Now we will come to the eighth question. Eighth question, same eight type question we have done. Find three different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11. Okay. सो आपको 5/7 एंड 9/11 के बीच में आपको 3 नंबर्स फाइंड करना है. ये वाला मैंने आपको 2 तरीके बता दिए थे. होप इससे आप कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन, नाइन्थ. ओके, नाइन्थ क्वेश्चन वी विल सी नाउ. सी, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल. ओके, अगर आप रूट, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, दे आर ऑल इरेशनल नंबर्स. अगर आप 23 को जस्ट इसका स्क्वायर रूट निकाल के ही देख लो. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ. ओके, सो ये क्या है, बिकॉज इट इज अ प्राइम नंबर, सो ये तो खुद से ही डिवाइड 23 वन है, इसका कोई पेयर है ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर रूट है ही नहीं. सो येस इट इज अ इरेशनल नंबर. एस से मैं डिनोट कर देती हूँ. अब आ जाते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल पे. सेकेंड इज 225. मैं इसको आपको करके भी दिखा देती हूँ. अगर ये परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाएगा, या अगर सपोज ये क्यूब रूट होता, अगर परफेक्ट क्यूब रूट आता तो भी वो रैशनल नंबर, बट बिकॉज इट इज स्क्वायर रूट हम करके देख लेते हैं. 225 को 5 से होगा, 5 4 जा 20, 2 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. देखिए एक 3 और 5, सो मतलब 15 जो है वो इसका, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है. 15 इंटू 15 225 आता, तो येस इट इज अ रैशनल नंबर. हम आ जाते हैं थर्ड पे. थर्ड वाला आपका क्वेश्चन अगर आप देखोगे, उसको करके देखोगे, 0.3796, इसको आप डिवाइड करके देखो, चेक करोगे 0.3796. अगर आप इसको p/q फॉर्म में करके देखोगे, आप देखोगे येस इट इज अ प्रॉपर रैशनल नंबर. ओके, इसको आप चेक कर लेना, एक बार डिवाइड करके देख लेना. अब आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन. अगर आपको इसको चाहिए तो मैं इसको बता सकती हूँ, बट ये सिंपल आप डिवाइड करके देखोगे. 3796 अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको डेसिमल को, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको डिवाइड करोगे, डेसिमल अगर मुझे हटाना है तो क्या हो जाएगा, 3796 इंटू 1 2 3 4, 4 डिजिट से मैं मल्टीप्लाई करूंगी. ठीक है, और यहाँ डाउन में भी. सो अगर आप डिवाइड करके देखोगे, यहाँ से डेसिमल हट गया, ये बेसिकली हो जाएगा 3796 डिवाइडेड बाई 10,000. आप डिवाइड करके अगर 10,000 को देखोगे 3796, तो अल्टीमेटली लास्ट में रिमाइंडर आपका 0 आएगा. ये प्रॉपर टर्मिनेटिंग हो जाएगा. फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखो तो वैसे लिखा हुआ है. फोर्थ क्वेश्चन 7.478478. ठीक है, 478 478 7.478 478 फोर्थ. ओके, अब आप ये बताओ, आपको देख के कैसा लग रहा है, ये क्या है. सी 478, सेम उसी पैटर्न पे फिर से 478 रिपीट हो रहा है. देख के ही पता चल रहा है दैट इट इज, यस, बट दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग.
ओके, ये हो गया। अब हम आते हैं लास्ट फिफ्थ वन ऑल्सो इज योर irrational. इफ यू सी सीक्वेंस है 1.101 001 कोई पैटर्न ही नहीं, एक बार 10 है, फिर एक बार 100 है, फिर 1000 है, सो दिस इज irrational. आई होप मैं एक क्वेश्चन बीच में फिफ्थ वाला भूल गई हूँ. आई विल टेल यू दैट ऑल्सो. फिफ्थ क्वेश्चन आई फॉरगॉट. फिफ्थ क्वेश्चन ये है, एक बार रीड कर लेते हैं. व्हाट कैन be the maximum number of digits in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17. इसका डायरेक्ट फॉर्मूला 1/17 आप डिवाइड करके देखोगे और आप चेक करोगे, मे बी बहुत टाइम लग जाएगा. ठीक है, ऐसे करोगे आप देखोगे ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. सो इसका भी एक फॉर्मूला है. अगर इफ योर डिवाइजर, सपोज दिस इज योर 17, ठीक है, इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1/n. ओके, इक्वेशन 1/n है. n इज योर डिवाइजर. ओनली व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1/n, n इज योर डिवाइजर. तो हमारा रिपीटिंग स्ट्रिंग्स कितना हो जाएगा? n - 1 मीन्स n इज 17, तो ये हो जाएगा 17 - 1 16. विदाउट डिविजन आप बता सकते हो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रहेगा और इसकी रिपीटिंग स्ट्रिंग्स कितने रहेंगे? 16 डिजिट के. मतलब कुछ जो भी आएगा इसका 0.1 करके 16 टाइम्स के बाद अगेन इट विल कीप ऑन रिपीटिंग. होप ये समझ में आ गया. इसके साथ हम एक्सरसाइज 1.3 फिनिश करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम 1.4 लेंगे. दिखा दूंगी, बट मैं वैसे बता रही हूँ कि ये बेसिकली हमारा जो है वो कंप्लीटली टर्मिनेटिंग डेसिमल. आप डिवाइड करके भी अगर देख लो, पॉइंट आया 0, ठीक है, 32 कर लो, यहाँ पे 8, ठीक है, फिर आप 6 से 9 से नो 3 32 का आप कर लो, ज़्यादा हो जाएगा. 32 4 2 ज़ार 8 4 3 ज़ार 12 5 2 ज़ार 10 0.47. ठीक है, जैसा मैं ओके. सो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट. देखिए उसमें क्या दिया है? 0.47. आपको देखना है बार किसके ऊपर है. सो अगेन 1 डिजिट के